Hello learners, this is the 10th video of second week. Hallo, guten Tag, wie geht es Ihnen? Mir geht es sehr gut, danke. कल हमने क्या किया था? Der, die, das. क्या आपने अपने घर में इसको ट्राई किया? कुछ कुछ चीज़ों पे कार्ड्स लगाने का, जैसे das सोफ़ा, das Bett, der Tisch. आई एम श्योर ये एक्सरसाइज आपने की होगी और आपको मज़ा भी खूब आया होगा. चलो आओ हम लोग थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें. Hallo Jyoti, Hallo Charu, wie geht's? mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht's auch fantastisch, danke. Was ist das? Oh, das ist meine Tasche. Sie ist sehr schön. Danke. Und was ist das? Das ist mein Schlüssel. Ach so, du fährst Auto. Ja, ich fahre mein Auto. Der Schlüssel ist aber alt. Ja, er ist alt. Mhm. Und Charu, Ja. was ist das? Das ist meine Sonnenbrille. Ach so, die Sonnenbrille ist schick. Was kostet die Sonnenbrille? Sie ist ein bisschen teuer und sie kostet 5000. 5000 Euro? Nein, dann es ist 50 Euro. Dann es kostet 50 Euro. 50 Euro. Ja, Das ist günstig. danke. Und Jyoti, was ist das? Das ist meine Uhr. Oh, ist sie neu? Nein, sie ist alt. Und ist sie billig? Nein, sie ist auch teuer. Oh, und sie ist aber sehr schön. Danke, Charu. Und was ist das? Das ist mein Handy. Ach so, das Handy ist modern. Ja, es ist neu. Und wie viel kostet das Handy? Euro? Nein, Rupien. Dann es kostet 50.000. Ich denke 50.000. 50.000 Rupien. Ja, 50.000 Rupien. Das ist sehr teuer. Ja, es ist sehr teuer. Und was ist das, Charu? Das ist mein Stift. Das ist ein Stift. Ja. Schreibt der Stift gut? Nicht so gut. Er schreibt nicht so gut. Es ist ein bisschen kaputt. Er ist kaputt. Ja, es funktioniert nicht. Er funktioniert nicht. Ja, Ach so, dann kaufen wir einen neuen. okay. Danke, Charu. Danke, Jyoti. Tschüss. Ciao. So, war das interessant? Ja, das war sehr interessant. Let us see what we have learned today. ein, einer und ein. क्या आपने डायलॉग के बीच में कुछ सुना? ein, einer, ein. वो क्या था? आओ देखें. Das ist ein Tisch. ये जो यहाँ पर है, this is a table. Der Tisch ist schwarz. The table is black. Das ist eine Tasche. This is a bag.
Die Tasche ist grün. The bag is green. Das ist ein Sofa. Das Sofa ist rot. This is a sofa and the sofa is red. Das sind Bücher. These are books. Die Bücher sind interessant. The books are interesting. So, what do you see here? एक बार ध्यान से देखो. We have the articles der, die, das जो हमने कल सीखे थे. Der for masculine, die for feminine और das for neutrum. और एक और एंड में प्लूराल के लिए हम लोग बोलते हैं die. जैसे die Bücher sind interessant. Bücher is plural for book. Das Buch, the book. Die Bücher, the books. और ये क्या है आज नया? ein, eine, ein. थोड़ा सा सोच के देखो. ein, eine, ein कब लग रहा है और der, die, das कब लग रहा है? अगर तो कुछ जनरल सा सेंटेंस है जैसे das ist ein Tisch. यह एक टेबल है. कोई भी टेबल हो सकती है. हम बस बोल रहे हैं यह एक टेबल है. दिस इज अ टेबल. और फिर हम कहते हैं der Tisch ist schwarz. अब हम उस टेबल को डिस्क्राइब कर रहे हैं. सारी टेबल ब्लैक नहीं होती, लेकिन हम कह रहे हैं der Tisch ist schwarz, यानी कि यह वाली टेबल ब्लैक है. So this is we are talking about this particular table. जब किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तब हम लगाते हैं आर्टिकल der, die या das, जिनको बोलते हैं bestimmte Artikel, definite articles. और जब भी हम जनरल बात करते हैं this is a table, this is a bag, this is a sofa, यानी कोई भी बैग है, वो कोई भी सोफ़ा है. दिस इज़ अ सोफ़ा, यह एक सोफ़ा है. और फिर हम बता रहे हैं कैसा है वो सोफ़ा, तब हम बोलेंगे das Sofa ist rot. सारे सोफ़ा रेड कलर के नहीं हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर पड़ा है ये रेड कलर का है. सो das Sofa is rot. We are talking about this particular sofa. Das sind Bücher. Bücher हो गई प्लूराल. These are books. प्लूराल में हम लोग नहीं बोलते These are a books. अ जब भी बोलेंगे कोई सिंगुलर चीज़ रहेगी, कोई सिंगल चीज़ रहेगी. जैसे टिश एक चीज़ है, ताशा एक है, ज़ोफ़ा एक है. लेकिन ब्यूशर हैं बहुत सारी, एक से ज़्यादा. तब हम ein, eine, ein कुछ नहीं लगाएंगे. हम सीधा बोलेंगे das sind Bücher. These are books. और इधर अब हम बुक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं. Die Bücher sind interessant. The books are interesting. ये वाली जो किताबें हैं ये इंटरेस्टिंग हैं. तो der, die, das जब हम बोलते हैं इसको बोलते हैं bestimmte Artikel, definite articles. और ein, eine, ein, der के साथ ein, die के साथ eine, das के साथ ein. ein, eine, ein की कैटेगरी हुई unbestimmte Artikel, indefinite article. और प्लूराल के केस में
we only have definite article which is D. We don't have any indefinite article in case of plural. क्या इसको हम लोग एक बार फिर प्रैक्टिस करें? तो आओ एक इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज देखते हैं. Bitte ergänzen Sie. Please fill in the blanks. Beispiel, Example. Das ist ein Buch. This is a book. यह एक किताब है. कोई भी किताब हो सकती है. Das Buch heißt Menschen. The book is called Menschen. इस बुक का टाइटल है मेंशन. अब किस बुक का टाइटल है वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. इस बुक का टाइटल है मेंशन, इसीलिए यहाँ पर यूज़ होगा das Buch. ऐसे ही आगे के सेंटेंसेस देखते हैं. आप यहाँ राइट साइड की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, उसके बाद लेफ़्ट साइड का कॉलम भर सकते हैं. राइट साइड से आपको पता चलेगा आर्टिकल्स क्या क्या हैं, और आपको पता है डेयर और das आर्टिकल है, तब आप यहाँ पर लगाएंगे ein. और अगर डी आर्टिकल है या फिर प्लूरल डी आर्टिकल है तो आप यहाँ पर लगाएंगे eine. और अगर प्लूरल है तब आप क्या लगाएंगे? तब यहाँ पर आप लगाएंगे क्रॉस, क्योंकि प्लूरल के केस में ein, eine, ein नहीं लगेगा. तो एक बार सोच के देखिए. Nummer 1. Das ist eine Studentin. Die Studentin heißt Maria. This is a student. Studentin है, so die Studentin होगा, इसीलिए eine. Die Studentin heißt Maria. इस स्टूडेंट का नाम है Maria. Das ist ein Institut. This is an institute. Das Institut ist sehr gut. The institute is very good. Not all the institutes are good, but ये वाला बहुत अच्छा है, इसीलिए das Institut ist sehr gut. Das ist ein Haus. यह एक घर है. Das Haus ist modern. The house is modern. Das ist ein Apfel. This is an apple. Der Apfel ist süß. The apple is sweet. Das ist eine Banane. This is a banana. Die Banane ist reif. The banana is ripe. पका हुआ है. Das ist eine Landkarte. This is a map. Die Landkarte ist von Deutschland. The map is of Germany. यह जर्मनी का मैप है. Das ist ein Eis. This is an ice cream. कोई भी आइसक्रीम हो सकती है, so this is an ice cream. अब जब आइसक्रीम को डिस्क्राइब करेंगे तब bestimmte Artikel, definite Artikel. Das Eis schmeckt gut. The ice cream tastes good. ये आइसक्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा है. Das ist ein Junge. This is a boy. Der Junge heißt Johann. इस लड़के का नाम है Johann, इसीलिए der Junge. अब हम इस लड़के की बात कर रहे हैं.
इस पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हैं। Das sind Kinder, ये बच्चे हैं। Kinder is plural, इसीलिए ein, einer, ein कुछ भी नहीं लगेगा। हम सीधा कहेंगे Das sind Kinder, these are children। प्लूराल के साथ ist की जगह पे sind। प्लीज़ लुक एट द वर्ब चेंज ऑल्सो। प्लूराल के साथ हमेशा sind। Das sind Kinder, ये बच्चे हैं। अभी जनरल हम बात कर रहे हैं, कोई भी बच्चे हो सकते हैं। अब जब हम पर्टिकुलर बच्चों की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कुछ बच्चों की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक बच्चों की, तो हम बोलेंगे Die Kinder gehen zur Schule, ये बच्चे स्कूल जाते हैं। The children go to the school। Das sind Blumen, these are flowers। Flowers is also plural, इसका सिंगुलर है die Blume। एक फूल है तो die Blume, कई सारे फूल हैं तो die Blumen। So this is plural। Das sind Blumen, these are flowers। Die Blumen sind bunt, the flowers are colorful। Die Blumen, ये वाले फ्लावर्स बहुत कलरफुल हैं, बहुत रंग बिरंगे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कब हम ein, eine, ein यूज़ कर रहे हैं और कब हम der, die, das यूज़ कर रहे हैं। जैसे अब आप एक बार देखिए दोबारा से, अगर मुझे बोलना है was ist das, यह क्या है, मैं बोलूँगी Das ist ein Handy, this is a mobile phone। कोई भी मोबाइल फ़ोन हो सकता है। और जब मुझे इस मोबाइल फ़ोन को डिस्क्राइब करना है तब मैं बोलूँगी उसका आर्टिकल और फिर सेंटेंस। Das Handy ist modern, ये वाला मोबाइल मॉडर्न है। या फिर Was ist das, यह क्या है, Das ist ein Stift, ये एक पेन है। This is a pen। अ या एक बोलना है तो ein, eine, ein, वो आर्टिकल के हिसाब से। जैसे der Stift है तो हम बोलेंगे Das ist ein Stift। अब जब इस पेन को आगे डिस्क्राइब करना है कि ये पेन अच्छा चलता है तो हम कह सकते हैं Der Stift schreibt gut, यह पेन अच्छा चलता है। Was ist das? Das ist eine Sonnenbrille। अब आप गेस कर सकते हैं इसका आर्टिकल क्या है। अगर मैं बोलती हूँ eine Sonnenbrille तो इसका आर्टिकल है die Sonnenbrille। Das ist eine Sonnenbrille। Und wie ist die Sonnenbrille? How is this sunglass? Die Sonnenbrille ist teuer, the sunglasses are expensive and so on। अब आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए, जो भी फर्नीचर पर आपने कार्ड्स लगाए हैं उसको आप एक बार जाकर देखिए और फिर उसको आगे डिस्क्राइब कीजिए। जैसे आपके घर में सोफ़ा है, आप बोलिए Das ist ein Sofa। Das Sofa ist bequem। This is a sofa and the sofa is comfortable। ऐसे ही सब फर्नीचर के साथ या जितनी भी चीज़ें आपके रूम में आपको दिख रही हैं, ein, eine, ein और der, die, das की एक बार एडजेक्टिव्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अब ये हमारा सेकेंड वीक का एंड है, तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट जर्मन एक्सप्रेशंस एक बार देखते हैं।
जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आप किसी से मिल रहे हैं, अगर आपको किसी को ग्रीट करना है तो आप क्या बोल सकते हैं? इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में आप बोल सकते हैं हेलो, हाय, हे, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रॉइट मिश, नाइस टू मीट यू। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आप बोल सकते हैं फ्रॉइट मिश, हेलो फ्रॉइट मिश, आपसे मिलके अच्छा लगा। या नहीं तो हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, हम पूछते हैं हिंदी में और, तो जर्मन में उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? ना, ना, या फिर lange nicht mehr gesehen, lange nicht mehr gesehen, बहुत दिन से तुम दिखे नहीं हो, बहुत दिन हो गए हम मिले हुए, बहुत दिन हुए एक दूसरे को देखे हुए। lange nicht mehr gesehen, या फिर हेलो, alles gut, सब ठीक है, alles gut, सब ठीक चल रहा है। या फिर मैंने उस दिन बोला था कुछ कुछ रीजनल एक्सप्रेशंस भी होते हैं, जैसे आप अगर साउथ जर्मनी की तरफ चले जाओ तो आपको मिलेंगे एक्सप्रेशंस जैसे सर्वुस, या फिर ग्रुस गॉट, या फिर ग्रुस डिश, या फिर मोइन मोइन। ये आप आगे YouTube में भी देख सकते हैं। उसके बाद जब हम एक दूसरे से विदा ले रहे होते हैं, एक दूसरे को बाय बोल रहे होते हैं, तब हम क्या क्या बोल सकते हैं? Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, फिर मिलेंगे। Auf Wiedersehen is formal, फिर मिलेंगे। Ciao, आजकल यंगस्टर्स जो हैं चाओ भी बोलते हैं। चाओ इज ऑल्दो एन इटालियन वर्ड, बट ये चलता है। चाओ, दिस वन। च्यूस, च्यूस, च्यूस इज ऑल्सो वेरी इनफॉर्मल। च्यूस, च्यूस। bis später, bis dann, bis bald, मतलब अगली बार तक के लिए। bis später, फिर मिलेंगे। bis dann, तब तक के लिए। bis dann, bis bald, जल्दी मिलते हैं। bis bald। या फिर Germans are usually very polite, ये लोग बहुत अच्छे से आपको विदा करेंगे। जैसे कि अगर तो वीकेंड आ रहा है और अब फ्राइडे को लोग आपस में बाय बोल रहे हैं, तो वो बोलेंगे schönes Wochenende, have a nice weekend, schönes Wochenende, have a nice weekend, आपका वीकेंड अच्छा हो। या फिर शाम के टाइम अगर वो लोग बाय बोल रहे हैं तो वो बोल सकते हैं schönen Abend, guten Abend। या फिर अगर जैसे बोलते हैं हैव अ नाइस डे, तो einen schönen Tag, einen schönen Tag and so on। और क्योंकि हम नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, कई बार हमको लगता है अरे इसको क्या बोलते हैं, अरे इस वर्ड को कैसे लिखते हैं, आप प्लीज़ थोड़ा सा धीरे बोलिए, आप दोबारा बोल सकते हैं क्या? तो ऐसे एक्सप्रेशंस हम कैसे बोल सकते हैं, यह भी हम आज आपको बताएंगे। मान लो हमने कुछ बोला और आपको समझ में नहीं आया, या किसी ने भी कुछ बोला और आप चाहते हो वो रिपीट करे, तो आप कह सकते हैं वी बिटर, क्या? इट्स लाइक कैन यू रिपीट, आई बेग योर पार्डन, वी बिटर, क्या? Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte wiederholen? क्या आप इसे प्लीज़ दोहरा सकते हैं? Können Sie bitte langsamer sprechen? Can you please talk slowly? जैसे अगर कोई जना बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तब आप बोल सकते हो
Können Sie bitte langsamer sprechen? Was bedeutet das? इसका क्या मतलब है? What does this mean? Was bedeutet das? Wie sagt man das auf Deutsch? इसको जर्मन में कैसे बोलते हैं? Wie sagt man das auf Deutsch? आपके सामने अगर कोई जर्मन आ जाता है, आपको नहीं पता कि क्या बोलना है, आप पूछ सकते हैं, हेलो, wie sagt man das auf Deutsch? इसको जर्मन में कैसे बोलते हैं? Wie schreibt man das? इसको कैसे लिखते हैं? How does one spell it? जब आप लिखने लगते हैं तब आपको लगता है कि इसकी स्पेलिंग क्या है, तो आप पूछ सकते हैं Wie schreibt man das? How does one write? How does one spell this? Ist das korrekt? क्या ये सही लिखा है मैंने? Ist das korrekt? Is this correct? Nein, das ist falsch. No, this is wrong. Nein, das ist falsch. तो आज हम लोगों ने खूब सारे जर्मन एक्सप्रेशंस सीख लिए हैं. I would request you all to please practice at home और बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस कोर्स का नाम है टॉक टाइम जर्मन. अगर आप घर पर बोल नहीं रहे हैं तो फिर चीटिंग है. अगर आपको कोई नहीं मिल रहा घर पर बोलने के लिए, तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और शीशे में खुद को देखकर ही आप बातें कीजिए, या फिर एक पार्टनर ढूंढ लीजिए और उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए. सो, Dankeschön, auf Wiedersehen, bis bald.